तो आप ये देखेंगे कि जब 3,86,000 केस प्रतिदिन हो रहे थे दूसरी सर्ज में, तो जो मृत्यु थी वो 3,000 के लगभग हो रही थी। उस समय देश में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का प्रतिशत 2% था। ओनली 2% ऑफ पीपल in our country were vaccinated during that period of 1st of April to 30th of April. And while we had almost 4 lakh new cases, the number of deaths which were happening on a daily basis were more than 3,000. Now let us see what is happening today. आज हमारे देश में क्या हो रहा है? 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच के केसेस और मृत्यु का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि केसेस 3,17,532 हैं, जबकि जो मृत्यु हो रही हैं वो 380 हैं। और इस समय जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है लोगों का जो वैक्सीनेट हो गए पूरी तरह से, वो 72%। तो दो बड़ी चीज़ इस कंपैरिजन से उभर कर आती हैं। एक ये कि दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज़ है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। पहली डोज जिन्होंने नहीं ली उसे लें, जिन्होंने दूसरी नहीं ली उसे लें। जो नए आयु वर्ग वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ हुए हैं उसमें भी लोग आगे आएँ, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें प्रोग्रेस हुई है। और जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो भी आगे आएँ। One is regarding tests and the other is regarding vaccination. Now, we know that the overall test performance in the country is being maintained at a level comparable with the second wave. Testing commodities are in plenty, whether it be for RT-PCR, whether it be for rapid antigen test or for home antigen test, or the ancillary equipment like viral transport medium or RNA extraction kits. And what is important to note that we have noted an increasing uptake of home tests being observed. In the whole of 2021, we saw only 3,000 tests, home tests that were used. And in these 20 days, we have seen 2 lakh home tests which have been used. Few districts and states are witnessing a dip in test performance and have been encouraged to ramp it up. So this is regarding the testing. Regarding vaccines, I have a few points to make. One is that, very beautifully highlighted in that graph, vaccines have remained beneficial in India. And Vaccine Tracker, which is an online tracker, which gives a week-to-week shows the benefit of its ability to reduce deaths considerably among vaccinated compared to unvaccinated. So deaths is considerably reduced, and you can see it week by week over the last few months, which is available online in a real-time sense. The current surge in India is not, and I emphasize, is not witnessing an increase in severe illness and deaths following high vaccination uptake. So that was beautifully illustrated in that graph. Because of high vaccination uptake, we are not witnessing that much severe disease and death. However, we have to remember one point. Those with comorbidities should monitor their health and avoid complications. So this is regarding vaccination. To summarize, vaccines prevent death and therefore is a must. Having said that, all serious disease and deaths are very low in this wave because of the very high vaccination uptake in the country, which is 94% of first dose in adults and 72% full dose in adults. Thank you. Thank you very much.
आपके सामने जो चित्र पेश किया गया है पैंडेमिक की सिचुएशन का, आप देख रहे हैं कि लगभग सारे देश में काफ़ी ज़ोर से ये थर्ड सर्ज चली हुई है और उसमें डेथ्स कम हैं, ये भी क्लियर है, लेकिन बेस लाइन पे जाएं तो उससे बड़ी भी हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन वैक्सीन का शील्ड होने की वजह से मॉर्टेलिटी बहुत 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 कम है और आपने आज कंपैरिजन भी देखा सेकेंड सर्ज के मुकाबले में, और यही हमारी मेन थीम है आज इस डायलॉग की। मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 16% देश में बहुत हाई है और प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे कि 50%, जैसे गोवा में है, केरल में 42%, राजस्थान 31%, हरियाणा पंजाब 18-19%, हिमाचल 30%, असम 24%। तो वायरस का ज़ोर है, इसलिए पूरी तैयारी से इसका जवाब देना हमारे लिए हमारा एक मिशन है, हमारा मिशन है, मेन मिशन है आज के दिन में। और उस लड़ाई में हम बार बार इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि वैक्सीनेशन को अपनाना है, प्रिकॉशंस लेनी है, पर्सनल प्रिकॉशंस मास्क के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, और प्रिकॉशंस जो सोशल मेजर्स हैं उनको अपनाना है। इनको कम करने का भी वक्त बिल्कुल नहीं आया है। वापस आते हैं वैक्सीन के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे कि बताया गया कि मोर्टेलिटी कम है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ होंगी तो फिक्र है। बाहर के देशों में भी ये डेटा उभर के आता है, हम भी वही चीज़ देख रहे हैं कि इस रिलेटिवली लो मोर्टेलिटी फेज ऑफ पेंडेमिक जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वो हैं जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उम्र में ज़्यादा है। इसलिए फिर विनती है कि प्रिकॉशन डोज लगे। इसलिए फिर विनती है कि जो 60 से ऊपर अभी भी छूटे हैं, फर्स्ट डोज में भी छूटे हैं अभी लगभग 1 करोड़ के लगभग 10% हमारे वृद्ध, सेकंड डोज में 25% अभी छूटे हुए हैं। ये अनफिनिश्ड वर्क है, इसमें प्लीज़ मदद करिए कि वो जुड़ जाएं और वैक्सीन की एक प्रोटेक्शन की लेयर, फर्स्ट डोज है तो दूसरी की, और अगर पहली डोज भी नहीं मिली है वो भी मिले। हमें प्रसन्नता है कि 15 से 18 की उम्र वाले बच्चे 52% कवर हो गए हैं फ्रॉम द कोहॉर्ट दैट वी आर टारगेटिंग। इसके साथ साथ प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को भी आगे और आना चाहिए, उपलब्धता बिल्कुल इशू नहीं है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी आना चाहिए, इसमें और तेज़ी आए तो बहुत अच्छा है। और इस काम को पूरा करने में और वैक्सीन की शील्ड को पूरी ताकत मिले, इसमें सबका सहयोग हम सबको चाहिए, देश को चाहिए, सरकार को चाहिए। इसी प्रकार 6.5 करोड़ व्यक्तियों के सेकंड डोज ओवर ड्यू हो गई है। ये किसी स्टेज पे 12 करोड़ थी, अब कम हो रही है, लेकिन ओवर ड्यू क्यों होना है? आप एक डोज लेके जुड़े हो इस कार्यक्रम के साथ, अपने लिए और सोसाइटी के लिए। दूसरी डोज प्लीज़ अपनाइए, आपको रिमाइंडर्स भी दिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हमारी लड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी शील्ड, हमारा कवच कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रोटेक्टेड नहीं है वो अपने लिए तो रिस्क पे है ही, उसके द्वारा संक्रमण फैलता है आगे, वो एक सामाजिक कमी भी आ जाती है। तो आज हम सब की तरफ से ये विनती है कि जैसे हम इस फेज़ में ओमिक्रॉन ड्रिवन थर्ड सर्ज का मुकाबला कर रहे हैं, चारों ओर से इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑप्टिमैलिटी की बात हो, सेफ़ हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड से, हम सेफ़ हैं टेस्टिंग की नज़र से, हम सेफ़ हैं मेडिसिन एंड सप्लाईज़ की तरफ से। ये करते करते मास्क को अपनाना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली में जो हमारे सीनियर हैं उनको ख़ास तरह से प्रोटेक्ट करना है, और उस सब में प्रिवेंशन का जो हमारा टूल है, हथियार है, वो वैक्सीनेशन है। उस काम को हमें जिस पैराडाइम में आगे लेके हम सब आए हैं, देश आया है,
उसको पूरा करें, उसको परफेक्शन तक लेके आए, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। What has happened so far is that the subject expert committee of CDSCO, Central Drug Standards and Control Organization, has recommended to the national regulator, the Drugs Controller General of India, that 2 vaccines be provided market approval. So that is what has happened. A final decision of the national regulator is yet to be taken. So once it is taken, we would again share it with you. Whether that market approval would be with certain specific conditions, that is also in the future, and we would share it with you. Most of your other questions will get answered once that market approval decision is taken by the national regulator. You see, throughout from 16th of January till date, the vaccination has started and has been rolled out based on scientific evidence and based on the assumption of protecting the most vulnerable people. So as the scientific evidence evolves, we would be expanding the coverage of the national COVID vaccination program. इस मंच से ये बात पहले भी शेयर की गई है। बिल्कुल जैसे जैसे प्रोग्रेस आती गई है वो आपके सामने बताते गए हैं, और जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि 12 साल तक वैक्सीनेट करना एक हमारे लिए एक गोल कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है सामने, और ये फैसले तभी लिए जाते हैं जब साइंटिफिक क्राइटेरिया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरी हो और पूरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का होलिस्टिक व्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी तरफ पूरी नज़र है, और जो अभी काम पकड़ा है उसको पूरा करें, उसको अपनाएं, और फिर ये इस फ्रंटियर पे भी काम हो रहा है, सोच का भी, प्रोडक्शन का भी और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का भी। देखिए, दोनों तथ्यों के उत्तर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो पहला जो प्रश्न आपका है उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि या दूसरे प्रश्न से पहले शुरू कर लेते हैं कि अगर कोई संक्रमित हो गया तो गाइडलाइंस हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, वो ये कहते हैं कि संक्रमण से रिकवर होने के 3 महीने के बाद आप अपना सेकेंड डोज या प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। तो वो तो अभी भी वही है। जिस दिन वो गाइडलाइन को परिवर्तन करने के लायक साइंटिफिक एविडेंस देश के भीतर का या बाहर का हमारे पास होगा तो उस पर एंटागी निरंतर रूप से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन विचार करता है, और वो एक निर्णय लेते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, और उस रिकमेंडेशन पर तब सरकार एक फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये तो हुआ आपका अंतराल, यानी सेकेंड डोज का अंतराल या प्रिकॉशन डोज लेने का अंतराल। पहला प्रश्न आपने क्या पूछा था? टेस्टिंग। जो पॉजिटिविटी के आंकड़े हैं या प्रतिदिन आने वाले केसेस के आंकड़े हैं, हालांकि हम उनको हर 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के दृष्टिकोण से 1 या 2 दिन के आंकड़े अपने आप में कोई ट्रेंड नहीं बताते। इसलिए जब हम आपके साथ कोई भी आंकड़ों का विश्लेषण शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो हम आपको 2 हफ्ते 10 दिन के आंकड़े दिखाते हैं ताकि एक ट्रेंड दिखे। अब एक दिन अगर टेस्ट कम हुआ और केसेस कम आए तो अपने आप में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इस बात का है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक राज्य में, एक संघ शासित क्षेत्र में या देश भर में कैसा बिहेवियर पॉजिटिविटी का रहा, नए केसेस का रहा, एक्टिव केसेस का रहा, उसके आधार पर पब्लिक हेल्थ रिस्पांस निर्धारित होते हैं। एज आई हैड सबमिटेड अर्लियर in the Union Ministry of Health and Family Welfare, every day at 9:30 in the morning, Dr. Paul, Dr. Bhargav, and lot of our other colleagues, Dr. Rajesh Gokhale from Department of Biotechnology, Aparna from who's Secretary, Department of Pharmaceutical, people who are heading other scientific institutions, we all gather and we monitor hospitalization data across age groups, across states, across UTs. You would appreciate
that in a limited interaction like this, it may not be possible on a single day to share this analysis for all states, but we do have it, and in the coming weeks we would share it with you. Coming to children, we also track this. What I can share with you immediately is the yearly data, because now we have the experience of more than 2.5 years of seeing this pandemic. So, if you look at 0 to 19 age group, in 2020, they contributed to 10% of the total cases and 0.96% of total deaths in 2020. In 2021, 0 to 19 years contributed to 11% of the total cases and 0.70% of the total deaths happening because of COVID. So you would see that between 2020 and 2021, there is not much of a difference, either in terms of contribution of this age group 0 to 19 to total cases, or in terms of contribution of this group 0 to 19 to total deaths. देखिए, मैं तो आपको केवल 2 तथ्य बताऊंगा, फिर साइंस के बारे में आपको डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव बताएंगे। पहला तथ्य ये है, हमने देश में अब तक 1,64,000 जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और ये पश्चिम के देशों की तुलना में भी बहुत अच्छी संख्या है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में हमने 16,000 जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं। और अंतिम तथ्य मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीनोम सीक्वेंस पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोविड पॉजिटिव वो है, उसके जीनोम सीक्वेंस ओमिक्रॉन है कि कोई और वेरिएंट है, उससे उसको कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया वही रहती है, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया वही रहती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का लाभ कैसे हम पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को मोल्ड करें, उसके लिए ज़्यादा है। डॉक्टर पॉल उसका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो बताना चाहेंगे। आपने एम्फेसाइज कर दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक और इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंट्स। किसी स्टेज पे जब ओमिक्रॉन का प्रभाव शुरू हुआ था तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उस फेज़ में, दैट नैरो कपल ऑफ वीक्स विंडो, उनमें किस तरह का प्रभाव था। फिर ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना धीरे धीरे कि जो फैसिलिटीज़ में दाखिल हो रहे हैं उनमें देखा जाए कि क्या ये ओमिक्रॉन वाले दाखिल हो रहे हैं कि डेल्टा वाले दाखिल हो रहे हैं। और आपको पहले भी विदित होगा कि एक जनरल फेज एक चली हुई थी, तो हमने 269 सेंटिनल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए विच आर स्टिल फंक्शनिंग, कि देश में किस तरह का प्रभाव चल रहा है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला है ऐसा नहीं है। अभी भी जहाँ तक हमें ज्ञात है दुनिया में शायद हम नंबर 2 पोजीशन पे हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग की। और जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हुई है, इट वाज वेरी मच ड्रिवन बाय साइंस दैट केम आउट ऑफ द INSACOG वर्क, working through over 30, almost 30 national laboratories. So we are doing well on this, and it is a tool for public health response, number 1. Number 2, it is a tool for scientific understanding of the behavior of the virus. And number 3, it from there leads us to finding solutions such as possibility of new diagnostics, new vaccines, efficacy of vaccines, and so on and so forth. देखिए, जब हमने प्रिकॉशन डोज के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे तो हमने ये कहा था कि ऐसे हेल्थ केयर वर्कर, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक के ऐसे कोमॉर्बिड लोग जिनको सेकेंड डोज लिए हुए 9 महीने या 39 वीक्स हो गए हैं, उनको प्रिकॉशन डोज दिया जा सकता है। तो जैसे हम केसेस का और पॉजिटिविटी का दैनिक विश्लेषण या एनालिसिस करते हैं, वैसे ही हम इस तथ्य का भी दैनिक विश्लेषण करते हैं। तो हमने ये पाया कि 20 जनवरी को अगर इन शर्तों को हम देखें कि आपके सेकेंड डोज के 9 महीने पूरे हो गए हों, तो 20 जनवरी को ऐसे लगभग 35 लाख हेल्थ केयर वर्कर थे जो प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू हो गए थे, और इनमें से 63% को प्रिकॉशन डोज मिल गया है, लगभग 22,66,000 लोगों को। उसी प्रकार 20 जनवरी को
ऐसे 33 लाख फ्रंट लाइन वर्कर थे जो प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू हो गए थे। इनमें से 19,14,000 को प्रिकॉशन डोज मिला है, विच इज़ 58%, which means that all the frontline workers who were due for their second dose, 58% of them have already got the precaution dose, and all the healthcare workers who were due for their precaution dose, 63% of them have got the precaution dose. Now coming to people who are 60 plus and comorbid and have taken the advice of their doctor for the precaution dose, that number on 20th of January was 47,81,000, लगभग 48 लाख मानिए। उनमें से 18,66,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है, which is 39%. So we think that given the fact that it is only 10 days since we rolled out precaution dose for these three categories, a coverage of 63%, 58% and 39% is not a bad coverage, although we are constantly engaging with the states to ensure that the uptake increases. Dr. Paul has also told you that it is essential that all of us collectively must motivate people to get the doses for which they are eligible. स्कूल्स को खोलना और स्कूलों को पैंडेमिक की नज़र से ना खोलना, ये डिसीशन पूरी पिक्चर को लेके लिया जाता है, और ये फैसला अगर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, दे must have kept all the points in mind. We would not have any particular comment to make. The overall guidance has been provided by the government, the union government from time to time, and the safety of schools children is important. Safety and safety of the staff is important, and above all, the reassurance to the parents and the families in this context is very important. Okay, so there is data. What we have done is that we have connected ICMR's testing portal with the CoWIN portal that captures the vaccination data, plus we are now connecting it with the COVID India portal, which captures the hospitalization data. So because of interconnectivity of these three portals, we are in a position to track breakthrough infections and also see the number of people who are hospitalized because of that breakthrough infection. And in our next interaction with you, we will definitely show you a slide on that. To the extent friends. We that close the press vaccines are conference now. protective for mortality is more than obvious, and we made a point. But the fact that vaccines are hugely protecting the serious disease and mortality is quite evident from the data that you have seen. Thank you. Thank you, friends.